Hello, dear students. We discussed number of topics in life process. Major, if we divide topics discussed in chapter life process, then we will find 8 major topics. That is uh, nutrition in plants and nutrition in animals, 2 topics. Then transportation in plants and transportation in animals, 4 topics. Then respiration in plants and respiration in animals, 6 topics. And then now we are going to discuss excretion. First we will discuss excretion in animals. Excretion in plants is a very स्मॉल टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक है वो. उसमें मैं आपको एक लेक्चर में थोड़ा बहुत, और जिसमें कि लास्ट लाइफ प्रोसेस का वो एंड लेक्चर भी होगा, लास्ट लेक्चर भी होगा, फाइनल लेक्चर भी होगा. कुछ और भी जो कुछ भी छूटा होगा, अगर इम्पॉर्टेंट कोई पॉइंट जो आप डिस्कस करना चाहते हैं तो वो भी उसमें मैं डिस्कस कर दूँगी. सो स्टूडेंट, वी प्रोसीड excretion in animals. First, what is excretion? Excretion. Animals accumulate ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water, ions like sodium ion, potassium ion, chloride ion, phosphate ion, sulfate ion. And there is a regular need, periodic need to get rid of these substances. These substances have to be removed totally or partially. Partially removed means these substances can be converted into another less harmful forms and then can be removed. Removal of nitrogenous waste is excretion. All these matter, actually all this is not nitrogenous, especially ammonia, urea, uric acid is nitrogenous. When we emphasize, go in detail in excretion topic, then we say that removal of nitrogenous waste is actually excretion, but there is need of removal of other substances also, like carbon dioxide, water, ions, different other that is getting accumulated in body. Body will try to get rid of, and that is also excretion. So animals, for definition you can say removal of nitrogenous waste is excretion. Removal of nitrogenous waste is excretion. Okay students, excretion in animals. Excretion in animals, ammonia, urea and uric acid are the major forms of nitrogenous waste excreted by the animals. Ammonia is the most toxic form and requires larger amount of water for its elimination. Whereas uric acid आप बर्ड्स में देखते हैं, जब बर्ड्स शिट करती हैं तो वो जो मटेरियल रिलीज़ होता है वो होता है. तो इंसेक्ट्स में भी आप देखते हैं उनके पेलेट्स इधर उधर, आप घर में काफ़ी टाइम के बाद सफाई करते होंगे या कभी कभी आप करते होंगे, दोबारा फिर भी आते होंगे 1-2 दिन में, तो आप देखते होंगे उस जगह पे कि ये छोटे छोटे से पेलेट्स पड़े होते हैं, वो यूरिक एसिड होता है. बर्ड्स में, इंसेक्ट्स में जो रिमूवल होता है नाइट्रोजन वेस्ट का, वो यूरिक एसिड के फॉर्म में होता है, और जो हम में होता है, ह्यूमंस में होता है, वो होता है यूरिया के रूप में. और तो जो एनिमल जिस फॉर्म में एक्सक्रीटरी मैटर को रिलीज़ करता है, उस बेसिस पर कुछ टर्म्स बनाए गए हैं, डिफ़ाइन करना होता है उन्हें. अमोनोटेलिज्म, जो एनिमल्स अमोनोटेलिज्म शो करते हैं, मींस जिनमें एक्सक्रीटरी मटेरियल अमोनिया के रूप में रिलीज़ होता है, उन्हें अमोनोटेलिक एनिमल्स कहते हैं. एंड व्हेन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज़ इन फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, दैट इज़ यूरिकोटेलिज्म. एंड एनिमल दैट रिलीज नाइट्रोजनस वेस्ट इन फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड known as uricotelic. And animals which removes nitrogenous waste in form of urea known as ureotelic, and this is ureotelism. Okay students, then what is ammonotelism? The process of excreting ammonia is ammonotelism. Simple. Many bony fishes, aquatic amphibians and aquatic insects are ammoniotelic in nature. We discussed in first slide that ammonia requires larger amount of water for its removal
फ्रॉम बॉडी से अगर अमोनिया रिलीज़ करवानी है तो ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो स्पेशली जो एनिमल्स एक्वाटिक हैबिटेट्स के हैं वही इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं। बाकी के एनिमल्स जो हैं वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के रूप में अमोनिया को यूज़ नहीं करते हैं। वो यूरिक एसिड जो लैंड हैबिटेट वाले होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, वो या तो यूरिक एसिड के रूप में या यूरिया के रूप में रिलीज़ करते हैं, क्योंकि ये लेस टॉक्सिक भी हैं और साथ ही साथ इनके रिमूवल के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यानी कि एनिमल जो है वो अपनी बॉडी में वाटर को कंजर्व भी कर सकता है। मेनी bony fishes, aquatic amphibians and aquatic insects are ammonotelic animals. Ammonia is readily soluble, is generally excreted by diffusion. तो कौन सी प्रोसेस से अमोनिया जो है वो रिलीज़ होती है? तो आप देखेंगे कि जो ये अगर मान लीजिए कोई एनिमल है, मान लीजिए ये है और ये वाटर मीडियम में है, तो इसकी जो बॉडी सरफेस हैगी, बॉडी सरफेस से डिफ्यूज़न से ही अमोनिया रिलीज़ हो जाती है। या और कुछ एनिमल्स जैसे कि फ़िश वगैरह हैं, उनमें अमोनियम आयंस के रूप में अमोनिया जो है वो अमोनियम आयंस के रूप में रिलीज़ होती है। तो सीधे सीधे अमोनिया के रूप में ही डिफ्यूज़ हो सकती है, अमोनियम आयन के रूप में भी डिफ्यूज़ हो सकती है। अमोनिया एज इट इज़ रिडली सॉल्युबल इज़ जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूज़न अक्रॉस बॉडी सर्फेसेस और थ्रू गिल सर्फेसेस इन फिश एज अमोनियम आयंस। किडनीज डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन रिमूवल ऑफ अमोनिया। लेकिन अमोनिया के रिमूवल में किडनी का कोई इम्पॉर्टेंट रोल नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्लाइड about ureotelism. Terrestrial adaptation necessitates the production of lesser toxic nitrogenous waste like urea and uric acid, and this is helpful in conservation of water. Mammals, many terrestrial amphibians and marine fishes mainly excrete urea and are called ureotelic animals. So students, remember the fact which animal group excretes urea, that is mammals, some amphibians, some marine fishes, and other groups are that release their excreta in form of urea known as ureotelic. और ये मेथड क्यों ज़रूरी है? क्योंकि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भाई पानी में तो रह नहीं रहा है कि पानी होगा तभी यूरिया, तो भाई यूरिया के रूप में रिलीज़ कर रहा है, यानी कम पानी है, लैंड हैबिटेट में रह रहा है, वाटर कंजर्व करना चाहता है, तो यूरिया के रूप में उसका एक्सक्रीटरी मैटर जो है वो बॉडी से रिलीज़ होता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्लाइड इज़ यूरिकोटेलिज्म. अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज़ कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लिवर. लिवर में जो ये यूरिया है वो बनती है, इसके पहले की स्लाइड में यूरियोटेलिज्म देखा था हम लोगों ने, एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड विच इज़ फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनी. जैसा कि हमने पढ़ा था कि अमोनिया के रिलीज़ में किडनी का कोई रोल नहीं होता है, लीवर का कोई रोल नहीं होता है। तो जो यूरियोटेलिज्म में हम देखेंगे तो यूरियोटेलिज्म में किडनी और लीवर का इम्पॉर्टेंट रोल है इसके रिमूवल में। तो किस तरीके से रोल प्ले करते हैं कि एक्चुअली जो अमोनिया ही है वही बनता है पहले एक्सक्रीटरी मटेरियल के रूप में, और वो यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि यूरिया साइकिल कहते हैं, और ये यूरिया साइकिल लिवर में चलती है, और फिर इसके बाद ये यूरिया जो होती है ब्लड के थ्रू फिल्टर कर दी जाती है, और इसमें किडनी का रोल होता है। Some amount of urea may be retained in the kidney matrix of some of these animals to maintain desired osmolarity. तो देखिए ये जो है ये अभी 10th लेवल के हिसाब से ये आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। यूरिन कंसनट्रेशन, एक्चुअली यूरिन कंसनट्रेशन की प्रोसेस में ऑस्मोलैरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसके लिए कुछ यूरिया जो है वो किडनी में प्रेजेंट रहती है हमेशा कुछ मात्रा में किडनी के मैट्रिक्स में। तो यही पॉइंट यहाँ पर बताया गया है। अगर आपके लेवल में आपको आता है समझ में तो ठीक है, अदरवाइज़ यू कैन स्किप दिस पॉइंट। बट जो मेन मैंने आपको बताया है एग्जांपल्स, और यूरिकोटेलिज्म क्या है, अमोनोटेलिज्म क्या है, यूरियोटेलिज्म क्या है, ये आप याद रखेंगे। सो रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड. पहले ही मैंने आपको बताया कि बर्ड्स जो शिट करती हैं वो, और जो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं उनकी पेलेट्स हमें इधर उधर दिखते हैं, वो उनकी एक्चुअली उनकी एक्सक्रीटा होते हैं. तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड के रूप में रिलीज़ करते हैं इन फॉर्म ऑफ पेलेट और पेस्ट, एंड विथ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर. दिस इज स्पेशल इन केस ऑफ
metabolism. Okay students, excretory structures in animalia. In animal kingdom there are special structures. In all type of animals there is no presence of kidney, and a special type of excretory system is not present. Some animals have different structures for excretion. Likewise, protonephridia or flame cells in platyhelminths, rotifers and other annelids. Nephridia is present in earthworm and other annelids. Malpighian tubules in cockroach and other insects. Likewise, antennal glands and green glands are present in crustaceans. Okay students, you have to लर्न दिस. आपको एक्चुअली ये याद करना पड़ेगा कि प्रोटोनेफ्रिडिया में जो है, प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स जो होती है वो प्लैटीहेल्मिन्थ्स में पाई जाती है, और इसी तरह जो अर्थवर्म और अदर एनिलीड्स होते हैं उनमें नेफ्रीडिया पाया जाता है. कॉकरोच या इंसेक्ट्स होते हैं उनमें मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, और क्रस्टेशियंस में एंटिनल ग्लैंड्स या उसी को ग्रीन ग्लैंड कहते हैं, जैसे कि प्रॉन है उनमें ये पाया जाता है. इसके अलावा और भी हैं जो आप इसमें अगर देखेंगे तो इस ग्रुप में अभी और भी आपको मिल सकते हैं कि किस रूप में, यानी कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है एनिमल यूज़ करता है अपना एक्सक्रीटा बॉडी से रिमूव करने के लिए. तो वो डिस्कशन भी है. जैसे कि प्रोटोजोआ है तो वो अपने जस्ट, प्रोटोजोआ जो है वो भी तो एनिमल है, वो अपनी सरफेस से सीधे ऐसे ही रिमूव कर देता है, और यानी कि ये अपनी जनरल बॉडी सरफेस से रिमूव करता है. और बाई प्रोटोजोआ में जो मेम्ब्रेन होती है वो उसकी प्लाज्मा लेमा होती है और उसी के थ्रू ये सीधे रिलीज़ कर देती है. तो अपनी मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू प्रोटोजोआ रिलीज़ करता है. प्लैटीहेल्मिन्थ्स में फ्लेम सेल्स बता दिया आपको. इसी तरह एस्केल्मिन्थ्स होते हैं तो उनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर एस्केल्मिन्थ्स, जैसे कि एस्कैरिस है तो रेनेट सेल्स पाई जाती हैं, उनमें रेनेट सेल्स पाई जाती हैं, उनके माध्यम से रिलीज़ करते हैं. इसी तरह से एनिलिडा जैसे कि अर्थवर्म में नेफ्रिडिया बताया आपको. ऑर्थोपोडा या इंसेक्ट्स में आपको मैंने बताया कि मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है. फिर ग्रीन ग्लैंड्स के बारे में बताया, तो ये मेजर आपको मैंने बता दिया. और इसी तरीके से एक ऑर्गन ऑफ बोजेनस होता है, ऑर्गन ऑफ बोजेनस, ऑर्गन ऑफ बोजेनस या केबर्स ऑर्गन कहते हैं, इसे केबर्स ऑर्गन कहते हैं या ऑर्गन ऑफ बोजेनस कहते हैं. ये मोलस्का में पाया जाता है और मोलस्का का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है. अगर आपको ये कुछ मैटर जो है वो यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिखूँगी. डिस्क्रिप्शन में आज भी लिख सकती हूँ, कुछ टाइम बाद भी लिख सकती हूँ, तो अगर वहाँ से भी आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैंने आपको ये बताया कि कौन कौन से एनिमल किस एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के माध्यम से जो है एक्सक्रीशन करते हैं. तो ये जो टॉपिक डिस्कस किया एक्चुअली ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक था, एक्सक्रीशन एंड. जो एक बार रिवाइज़ करेंगे टॉपिक को, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ. एक्सक्रीशन इन्वॉल्व्स द प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेज ऑफ नो फर्दर यूज़ or those present in excess quantities are thrown out of the body. This is a general, एक जनरल आप बोलेंगे कि हमारी बॉडी को जिन चीज़ों से छुटकारा चाहिए या जो ज़्यादा क्वांटिटी में एक्यूमुलेट हो रही हैं उनको बॉडी रिमूव करना चाहती है, गेट रिड ऑफ करना चाहती है, तो वो एक्सक्रीशन है. और जब लेकिन एक्सक्रीशन जो आप एक्सक्रीटरी सिस्टम आप पढ़ रहे हैं उसकी एक डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी तो आपको बतानी है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज़ एक्सक्रीशन. ओके स्टूडेंट्स, तो इसी में एक टर्म और होता है बेटा, ऑस्मो रेगुलेशन. ऑस्मो रेगुलेशन भी आपने पढ़ा है. तो ऑस्मो रेगुलेशन स्पेशली जब वाटर और सॉल्ट का रिमूवल है, यानी कि वाटर और सॉल्ट का बॉडी में बैलेंस बनाना है कि कब इसे रिटेन किया जाएगा, बॉडी में रोक लिया जाएगा, कंजर्व किया जाएगा सॉल्ट को या वाटर को, या कब इन्हें बाहर निकाला जाएगा. तो इसके लिए भी हमारी बॉडी में एक कंट्रोल मैकेनिज़्म चलती है जिसे कि क्या कहते हैं, वाटर एंड आयंस. स्पेशली सॉल्ट ही में आयंस ही होते हैं ये. तो वाटर और आयंस का जो रिमूवल है इसे ही क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन. ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन. तो ऑस्मो रेगुलेशन इज़ द कंट्रोल ओवर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन द बॉडी. द ऑस्मो रेगुलेटरी टिश्यू जो है वो एक्चुअली टिश्यू लेवल पर ही होता है, और कभी जो किडनी भी है वो भी ऑस्मो रेगुलेशन में कुछ हद तक पार्टिसिपेट करती है. डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑस्मो रेगुलेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं.
एक्चुअली ये ऑस्मो रेगुलेशन का एक अलग ही सेटअप चलता है बॉडी में, जिसके लिए कोई एक सिस्टम तो नहीं है। कभी डिटेल में मैं आपको वो एक स्लाइड डिस्कस करूँगी, बट अभी अपने चैप्टर में हम लोग हैं और वहाँ पर उसके हिसाब से आपको बस इतना ही जानना है। ऑस्मो रेगुलेशन इज़ कंट्रोल ओवर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, कंट्रोल ओवर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन आवर बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, then we discussed excretory structures and we discussed excretory product, nitrogenous excretory products that are formed mainly due to protein catabolism, protein breakdown. The main excretory products, so प्रोटीन का क्योंकि डाइजेशन होता है उसी से नाइट्रोजनस वेस्ट बनेंगे। देखिए आप कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसमें केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है। इसी तरह फैट के भी स्ट्रक्चर में होता है बेसिकली। लेकिन आप जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें एमिनो ग्रुप होता है और एमिनो ग्रुप की वजह से उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो जो ये एक्सक्रीटरी वेस्ट आपको मिलेगा, जिसे हम नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं, वो नाइट्रोजनस वेस्ट इसीलिए कहलाता है कि प्रोटीन ब्रेकडाउन से जो बनते हैं उन्हीं को रिमूवल की ज़रूरत होती है, वही मोस्टली एक्सेस अमाउंट में हो जाते हैं। तो अमोनिया इज़ द चीफ बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन एंड एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म and the animals which remove excretory product in form of ammonia known as ammonotelic. And in some animals this ammonia is converted into urea by urea cycle. Likewise in humans में भी यूरिया के रूप में बनता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, लेकिन उसे बदला जाता है यूरिया के रूप में, अमोनिया के रूप से उसे यूरिया में बदला जाता है ताकि जो वाटर है उसे बॉडी में रिटेन किया जा सके। नहीं तो बहुत सारा वाटर जो है रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी एक्सेस वेस्ट के लिए रिक्वायर्ड होगा। और वो जो यूरिया साइकिल होती है वो लीवर में चलती है। फिर जो यूरिया एक्सेस यूरिया होता है वो ब्लड में जाता है, लीवर से ब्लड में जाता है, ब्लड के माध्यम से, ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से। फिर आप जानते हैं ब्लड फिल्टर होता है किडनी में, और वहाँ पर इस यूरिया को जो है वो उसका बैलेंस बनाया जाता है, यूरिन के माध्यम से रिलीज़ किया जाता है। और यूरिया ही जो है हम जो एक्सक्रीटरी मैटर रिलीज़ करते हैं पॉटी के रूप में, वो भी वही यूरिया ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई डिस्कस्ड द टॉपिक इन शॉर्ट एंड आई होप एट you enjoyed the topics. I will discuss excretory system in human in detail. Tomorrow we will discuss this topic. So keep watching. Watch my videos on Usha Navodaya Times. Like, share and subscribe. You can comment. You can suggest me to modify, to improve my way of teaching. Okay students, thank you.